Ladies and gentlemen, sports enthusiasts and cricket lovers, welcome to a truly special edition of Radiant Sports Pick. I'm thrilled to be a host, Raadhika Khetarpal, as we embark on a journey that celebrates the universal spirit of cricket, bringing together extraordinary talents from both the differently able and able-bodied cricketing world. Today, we have a spectacular lineup that transcends boundaries and challenges perceptions. In one corner, we have a cricketing maestro, Shishir Hattangadi, a name synonymous with excellence in sports. His illustrious career as a former Indian first class cricketer and his tenure as a selector for the Mumbai Cricket Association, along with his role of head of cricket with Mumbai Indians, have left an indelible mark on the game. And on the other corner, we have an esteemed Haroon Rasheed, the General Secretary of DCCBI, with the dedication to the advancement of cricket for the differently able. He's a driving force behind making the sports accessible to all. Fasten your seatbelts as we're about to embark an incredible journey and speak a lot about cricket and the various trivia, stories, insights, and sheer magic in Radiant Sports Big World Cup edition. Thank you so much for joining in today. Jay. Thank you. So, starting with you, Shishir. Um, World Cup's on the mid space right now. What are your thoughts on the World Cup? How is India performing? And what do you see? What is the new thing that you see in this World Cup? Well, thank you for having me here. Firstly, welcome to everybody on this podcast. I'd just like to make a few observations on what I've seen in this World Cup. And the first being, of course, that India playing in their home conditions look pretty much invincible at this point in time because of two reasons. One is, of course, that their top order batting is clicking and they're reasonably consistent in the way that they've gone about chasing totals or putting up totals. And two is, of course, the fact that most of their bowlers have been picking up wickets, and there doesn't seem to be a loose link in their bowling attack. But having said that, all these things matter only till you reach the knockout rounds, because that's when you may be tested, and sometimes. When you haven't been tested throughout the tournament, a new situation, a new challenge which you haven't faced in the previous games can, in a sense, bog you down and affect your performance. So we just hope that they keep going on from strength to strength as Indian supporters, and well, they've not put a foot wrong, to be honest, in this tournament. The other observation that I have is that South Africa, despite their one bad day at the office, have shown that brute power and aggression can actually take them through to new totals that we have seen in the 50 over format. And this is something that India will be mindful of, other teams will be mindful of, and obviously the other observation that comes to mind is teams like England that have flattered to deceive along the tournament because the conditions haven't suited them, and of course when oppositions put up big totals, the task is pretty daunting. What is good to see is teams like Netherlands and Afghanistan, who we at one time called minnows, have stood up, and this has a lot to do with the approach that they've taken and the self-belief that they've shown in the tournament of being as good as the other teams, and that is so reassuring for the game of cricket, because at the end of the day, if you want the game to spread wide and far, it is important that the smaller teams actually upset some of the bigger teams. I just hope that India is not at the receiving end of one of these upsets, and which will ensure that these smaller teams actually will be passing on the baton of aspirations and and dreams to a generation of young players who will take it on after seeing their exploits in this World Cup. So all in all, I think there has been a good positive from an Indian perspective, and also for the game of cricket, because some of the smaller teams have put their hands up and shown that they're capable of competing with the best.
Absolutely. I totally agree with you. Harun ji, I'd like to first welcome you on this show. And, I'd like you to talk a little more about the game that you play and the game that you represent, a little more about the format so the audience gets to know and we're on the same page. We can understand more about your form of cricket. सबसे पहले तो नमस्कार जो भी लोग साथ हो रहे हैं। मैं अपनी बात हिंदी में ही रखना चाहूंगा राधिका जी। जी जी, बिल्कुल आपकी बिल्कुल। बात मैंने समझी है। देखिए हमारी जो ये दिव्यांगजन क्रिकेट है, मैं सबसे पहले इसी के बारे में बताऊंगा। ये क्रिकेट 1988 से श्री अजीत वाडेकर साहब इसको चलाते थे और उन्होंने इसको टेनिस बॉल से दिव्यांगजन क्रिकेट को शुरू किया था। उनका ये सोचना था कि एक तो वैसे ये शारीरिक रूप से विकलांग है, कहीं ऐसा ना हो इनको चोट लग जाए तो ये और भी ज्यादा इनको प्रॉब्लम हो जाए, क्योंकि बीते समय में पोलियो के बहुत सारे केसेस होते थे। तो अब वो केसेस काफी कम हो गए हैं, क्योंकि भारत सरकार की तरफ से जो पल्स पोलियो अभियान चलाया गया उसका बहुत बड़ा असर दिख रहा है कि अब जो पोलियो ग्रस्त बच्चे होते हैं वो 0% पे आ गए, बिल्कुल बहुत कम, उनकी नई आबादी में बहुत कम है। मैं भी इस क्रिकेट में 2002 से इन्वॉल्व हुआ एज ए सेलेक्टर, यूपी सेलेक्टर। मेरे को होने का अवसर मिला, हालांकि मैं फास्ट बॉलर था, रणजी ट्रॉफी ट्रायल तक मैं पहुंचा हूँ, लेकिन दुर्भाग्य था, चोट खा गया मैं भी। तो मैंने अपनी क्रिकेट एकेडमी चलाता था, तो वहाँ पर मेरे पास दो बच्चे ऐसे थे जो शारीरिक रूप से बिल्कुल बेकार थे, लेकिन वो खेलते बहुत अच्छे थे और वो नॉर्मल की तरह। तो जब इस क्रिकेट से जुड़ा और टेनिस क्रिकेट देखी और फिर थोड़ा सा अफसोस ये हुआ कि इन बच्चों को जो सर्टिफिकेट मिल रहे थे उनकी कोई वैल्यू नहीं थी। शिशिर साहब मेरी बात से सहमत होंगे कि अंडर 19 खेला हुआ बच्चा और रणजी ट्रॉफी ट्रायल तक पहुंचा हुआ खिलाड़ी, उसको रेलवे जैसे या एयर इंडिया या कोई अच्छी जगह पर उसको प्लेसमेंट मिल जाते थे। तो यही सोचता था मैं कि इन बच्चों को भी मिलना चाहिए, इन्हें भी समाज के साथ बराबरी में चलने का, जीने का हक। तो मुझे लगा कि शायद स्टेट सर्टिफिकेट की वैल्यू नहीं है, तो मैं इंडिया टीम बनाता हूँ, क्योंकि 4 साल काम करने के बाद मैंने महसूस कर लिया कि इनकी कहीं पर भी दुनिया में कोई टीम नहीं है। तो उसके लिए थोड़ी सी मदद हमने पाकिस्तान से ली, और पाकिस्तान में जो एक शोएब अख्तर साहब का के माध्यम से हम लोग वहां पर पहुंचे। एक खिलाड़ी मिला अकरम, उसने सबसे पहले वहां पे टीम बनाने का बीड़ा उठाया, क्योंकि हमारी इंडिया टीम तो रेडी थी, लेकिन इंडिया टीम खेलेगी किसके साथ। 2007 में हमने पाकिस्तान टीम को बनाने में मदद करी और 2008 में हम लोगों ने पाकिस्तान का दौरा किया। हम 4-1 से जीत के आए 5 मैच की सीरीज को। दोबारा हम फिर जाने वाले थे, तो बॉम्बे वाला जो कांड हो गया जिससे आज तक वो रिश्ते बहाल नहीं हो पाए हैं, तो रिश्ते खराब हुए थे। फिर उसके बाद हमने बांग्लादेश की यात्रा करी, बांग्लादेश में कुछ दिन रह के वहाँ के दिव्यांगों को इकट्ठा करके वहाँ की टीम बनाई। इसी तरह से श्रीलंका में आज जितनी भी एशिया टीमें हैं, वो ये मानिए कि मेरा क्रिकेट प्रेम मान लीजिए, वो अपने शौक के लिए मान लीजिए या हमारे बच्चे खेलें उसके लिए, जितनी भी एशिया की टीम है वो व्यक्तिगत मैंने जाके बनाई है, एक्सेप्ट अफगानिस्तान। अफगानिस्तान टीम जो है वो अलग से बनी है और उन्होंने हम सबको देख के टीम बनाई और बहुत अच्छी टीम। तो इस तरह से हमारा ये जो सिलसिला है ये चलता रहा। 2011 में जब मैं व्हील चेयर क्रिकेट पे आने की कोशिश करी, आप विश्वास करेंगे जो हमारे टीम के कैप्टन रमेश सरतापे हैं, वो मेरा मजाक उड़ाते थे किसी वक्त, अरे सर व्हील चेयर पर क्या क्रिकेट होगी, कोई खेलता व्हील चेयर पर क्रिकेट। और आज विश्वास कीजिए कि जब व्हील चेयर पर क्रिकेट होती थी ना, तो देखने वाले दंग रह जाते हैं। कोई मैदान पे अगर 10 मिनट के लिए आता है ना, तो दिन भर के लिए मैदान से वापस नहीं जाता। सच बताऊं ना तो एक अनोखा माहौल नजर आता है कि क्या लड़के व्हीलचेयर पर गिरते हैं, डाइव मारते हैं, दोनों पैर नहीं है फिर भी उनका क्रिकेट खेलने का जज्बा देखिए, उनका बैट और बॉल का कॉम्बिनेशन, मिडलिंग होना, स्वीट पॉइंट पे शॉट लेना, सारी खूबियां उनमें नजर आती हैं। और व्हीलचेयर पर बैठ के बॉल को मूव कराना, बड़ा मजा आता है। आज तक हम लोगों की टीम जो व्हीलचेयर और स्टैंडिंग मिला के हम लोगों ने 123 मैच हम लोगों ने खेल लिए अभी तक यहाँ पे, सॉरी 121 मैच हम लोगों ने खेले और 97 में हम लोग विनर हैं। अभी हम लोग नेपाल की टीम बुला रहे हैं 3 मैच के लिए, तो हो सकता है कि हम 100वीं जीत का जश्न अपने इंडिया में मनाएं।
That's fantastic. Thank you so much. आपने हमें रूबरू कराया व्हीलचेयर क्रिकेट और उसकी हिस्ट्री के बारे में. शिशिर, आगे बढ़ते हैं. I'd like to ask you, um, what are your thoughts on the wheelchair cricket format, and what are your thoughts on the different able cricket format compared to the able cricket? वेल मेरी मैं हिंदी में बोल दूं, सिंस दिव्यांग भी हिंदी में बोल रहे हैं, तो शायद एक यूनिफॉर्मिटी होगी इसमें. और मैं छोटी सी बात शिशिर साहब, एक छोटी सी इजाजत चाहूंगा. एक चीज छोटी सी मैं आप तक पहुंचाने में भूल कर गया. तो जो हम लोगों ने 2008 से क्रिकेट चलाया है ना, वो प्रॉपर नॉर्मल बॉल से ही होता है. और हम लोग एसजी क्लब का बॉल यूज करते हैं. किसी खिलाड़ी को कोई चोट की डर नहीं. और विश्वास कीजिएगा, हमारे पास ऐसे बॉलर हैं जो 135 तक की स्पीड के बॉल फेंकते हैं. हाँ, मैंने देखा है. और मेरे जो सीनियर थे अजीत वाडेकर, उनके साथ काफी मैंने ये डिस्कस भी की है. जब भी हम बम्बई में बात करते थे कि इसमें शायद बहुत कुछ किया जा सकता है. और हमारी एक चाह है कि ये जो भी होता है क्रिकेट, इसमें एक रोड मैप होना चाहिए. रोड मैप यानी हम कहते हैं ना कि एक बच्चा दूसरी क्लास से तीसरी में जाता है, तीसरी से चौथी में जाता है, फिर 10वीं की परीक्षा देता है, और फिर वो जो 11th स्टैंडर्ड या जो भी करता है, उसकी एक रोड मैप होती है, एक डेस्टिनेशन की तरह. वो जर्नी होती है और उसका एक डेस्टिनेशन होना चाहिए. और मुझे लगता है कि जब तक हम एक जर्नी को एक डेस्टिनेशन के हिसाब से वो मैप करें, तो हर खेलने वाला, एबल्ड हो, डिसेबल्ड हो, हैंडीकैप्ड हो, नॉर्मल हो, ये इसकी बात नहीं है. एक एक जो जर्नी हम चॉक आउट करते हैं एज लवर्स ऑफ द गेम, वो बच्चों को एक प्रोत्साहित करता है, एनकरेज करता है कि वो कुछ एक खेलने की वजह से एक उनका रास्ता चले, उनका एक जर्नी शुरू हो जाए, और अल्टीमेट डेस्टिनेशन होता है जो भी होता है. आज आप देखिए कि एक नया डेस्टिनेशन आ गया है नॉर्मल क्रिकेट में, आईपीएल. पहले क्या था कि आप रणजी ट्रॉफी, जूनियर क्रिकेट खेलिए, फिर रणजी ट्रॉफी खेलिए और इंडिया के लिए खेले, ये आपका जर्नी होता था. अभी और एक डेस्टिनेशन, वो पैसेंजर ट्रेन में जो यंग क्रिकेटर है, उसके पैसेंजर ट्रेन में और एक डेस्टिनेशन आ गया है, आईपीएल. तो बोलते हैं, बच्चे बोलते हैं, आज मैं बहुत बच्चों से बात करता हूं कि अगर इंडिया को नहीं खेलने मिला तो उसके पहले एक मींस होता है आईपीएल का, जो डेस्टिनेशन है उसको हम अचीव करें. उसी तरह से आई थिंक हर फॉर्मेट में, या हर जो बच्चा खेल रहा है, उसके लिए एक डेस्टिनेशन चॉकआउट करना चाहिए जर्नी के थ्रू. तो उसमें क्या होगा, उसमें फिनेंशियल सिक्योरिटी आएगी, उसमें ग्लैमर आएगा. ग्लैमर तो चाहिए. अगर ग्लैमर आएगा तो आप फेमस हो जाते हैं. फेमस हो जाते हैं तो आपको एंडोर्समेंट्स मिलते हैं, पैसा मिलता है, ब्रॉडकास्टर आ जाता है. ये सब चीजें है ना, एक इंग्रेडिएंट्स है सक्सेस के लिए. अगर आप बोलते हो कि एक जमाने में ऐसा था कि ब्रॉडकास्टिंग नहीं था, सलीम दुरानी भी एक सुपरस्टार थे, या वाडेकर भी एक सुपरस्टार थे, बट उस जमाने में ये सब चीजें मायने नहीं रखती थी, क्योंकि खेल सिर्फ एक ग्राउंड पे खेला जाता था. वो जो व्यूअरशिप होती थी वो ग्राउंड पे होती थी. अभी ऐसा हो गया है कि व्यूअरशिप टेलीविजन से आती है, ग्राउंड से आती है, फिर उसके पॉपुलैरिटी की वजह से पैसा आता है, और सब कुछ लिंक्ड है. तो मुझे लगता है कि अगर ये जो आप अच्छा काम कर रहे हैं, इसको एक आप जर्नी दे दे और डेस्टिनेशन दे दे, तो बाकी के जो कोलैटरल्स होते हैं वो ऑटोमेटिकली ज्वाइन इन हो जाते हैं, और आप एक पाइट पाइपर जैसे आगे बढ़ लेके जाते हैं स्पोर्ट को. उसमें पैसा भी चाहिए. आपको पता है कि आज आप स्पॉन्सरशिप के लिए जाओ तो 10 जगह आपको मिलना पड़ता है पॉलिटिशियन से. आज बीसीसीआई को स्पॉन्सरशिप के लिए जाना नहीं पड़ता है, लोग उनके पास आते हैं, क्योंकि पॉपुलर है गेम, लोग देखते हैं. आप अगर देखो, अभी जो ब्रॉडकास्टिंग राइट्स के जो एडवर्टाइजिंग है, हाई व्यूअरशिप के ज्यादा पैसा चार्ज होता है. तो ऐसा ऐसा एक जर्नी, अगर स्ट्रक्चर्ड जर्नी आप करेंगे, तो मुझे लगता है कि हर जो डिफरेंटली एबल्ड बच्चा है वो भी एक नेशनल नाम हो जाएगा. एक घर घर में उसका नाम होगा, और जब घर घर में नाम होता है तो ऑटोमेटिकली सब जो ब्रांड्स है या स्पॉन्सर्स है, वो सब ऑटोमेटिकली आ जाते हैं. तो एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं.
लेकिन उसके साथ एक स्ट्रक्चर्ड जर्नी और डेस्टिनेशन बनाने की कोशिश करें, और हम है मदद करने के लिए, क्योंकि हम इस बिजनेस में काफी टाइम से है, हमें पता है क्या लगता है सक्सेस होने के लिए एक स्पोर्ट को। सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आपने एक अल्फाज बोला कि हम हैं आपके साथ। तो बिल्कुल सर, हम लोग इसको शुरुआत हमारी बिल्कुल ऐसी हुई थी कि खिलाड़ियों की तरह, लेकिन अभी तो ये विधिवत प्रॉपर हम लोगों ने इसको दिव्यांग क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया नाम से, जो DCCBI शॉर्ट में आप सुन रहे हैं, इसका पूरा नाम दिव्यांग क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया है। इसको विधिवत हमने पैन इंडिया लेवल पर रजिस्टर्ड किया है। वेल सिस्टम, हमारे पास सेलेक्टर्स हैं, हमारे पास पूरे स्टेट्स की टीम है, 24 स्टेट की टीम आज की डेट में हमारे पास है। खिलाड़ियों की अगर काउंटिंग करेंगे तो 3000 से ऊपर अपने पास खिलाड़ी है। अभी हम लोगों ने एक रणजी ट्रॉफी सिस्टम पे एक टूर्नामेंट प्लान किया है, जिसमें टूर्नामेंट में 267 मैचेस हैं, और हम लोग इसको जनवरी से स्टार्ट करने की कोशिश में है। जैसे कि रणजी ट्रॉफी मैच 3 दिन का होता है, तो हम लोग 3 दिन में 3 T20 खिलाएंगे, क्योंकि ये लोग 40 ओवर या 90 ओवर के मैचेस नहीं खेल सकते, इनको तो थकान हो जाती है, इनके लिए 20 ओवर ही काफी है। तो हम लोगों ने जो प्लान किया, मंडे से लेकर सैटरडे तक हमारे हर मतलब 2-2 टीम के मैचेस हुआ करेंगे, 2 टीम ईस्ट में, 2 टीम वेस्ट में। करीब करीब ये 25 हफ्ते लंबा टूर्नामेंट है। और जो सर्टिफिकेट की लड़ाई थी सर, वो आज भी हमारी लड़ाई जारी है, और मैं अभी ये मीटिंग खत्म करने के बाद मिनिस्ट्री जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे अपनी फाइल वहां सबमिट करनी है। ये क्रिकेट में अभी सब कुछ है, लेकिन पैसा नहीं है। पब्लिक विश्वास नहीं करती, बहुत बड़ा जो बड़े स्पॉन्सर्स हैं वो जल्दी हाथ नहीं आते हैं, और सरकार भी इसको वैल्यू इसलिए नहीं देती कि सरकार के बजट में ये क्रिकेट है ही नहीं विकलांगों के लिए, उनके लिए, दिव्यांगों के लिए अलग खेल हैं। तो अभी सबसे पहली हमारी कोशिश ये है कि ये मुद्दा किसी तरह से कोई उठाए और इस क्रिकेट को सरकारी बजट में शामिल करे। मैं आज यही काम करने के लिए स्पेशली आज मैंने यहाँ रात को रुका हूँ। कल मुझे यहाँ पे द्वारका रामलीला कमेटी ने बहुत बड़ा सम्मान दिया है मेरे को, आगरा से स्पेशल बुला के सम्मानित किया गया है। और मैं कोई अवार्ड या पुरस्कार के लिए नहीं करता, बस अपने दिल की खुशी के लिए काम करता हूँ। फिर भी जिन्होंने मेरे को ये सब कुछ सम्मान दिया, उनका शुक्रिया। मेरे से थोड़े से दिन पहले मोदी साहब भी वहाँ मौजूद थे, मैं तो अगर जल्दी आता शायद मुलाकात करने का अवसर भी मिल जाता। तो प्रयास सर बिल्कुल सिस्टम से चल रहा है। दिव्यांग, मैं जरा आपको 1 मिनट के लिए इंटरप्ट करना चाहता हूँ। आप एक बात बोल रहे हैं, अगर आप ये स्ट्रक्चर करेंगे तो CSR जो बजट है कॉर्पोरेट से, जी जो CSR बजट है वो मैंडेटरी है कि स्पोर्ट या कोई भी कॉज के लिए आप ये मैंडेटरी होता है, और कोई कंपनी, मुझे नहीं लगता है 10 में से 5 तो कंपनी ये सपोर्ट करेंगे। दूसरी बात है, मैं थोड़ी पहले की बात कर रहा हूँ, 1983 की बात है, जब मैं पहले पहले शुरू करने क्रिकेट शुरू किया था बॉम्बे के लिए खेलने। तब मैं इंग्लैंड गया था और एक क्लब के लिए खेलता था। तभी 83 का जो हमारा जो दौर है शुरू हुआ था। तो तभी मुझे याद है 2-3 चीजें वो जो खड़ी होती है मन में। एक तो वहां पे उनको दिन का कुछ 20 पाउंड अलाउंस मिलता था प्लेयर्स को। अच्छा, 20 पाउंड में उनको डिनर और उनको ग्राउंड पे लंच मिलता था, ब्रेकफास्ट होटल में मिलता था, और डिनर का और लॉन्ड्री का खर्चा करना पड़ता था। तो मुझे याद है कि रॉजर बिनी जो थे टीम में, आज बोर्ड के प्रेसिडेंट है, वो सबके कपड़े काले बैग में लेके लॉन्ड्रेट में जाते थे कपड़े धोने के लिए। वो तभी लॉन्ड्रेट में जाओ तो 2 पाउंड में कपड़े धुल जाते थे। तो रॉजर बिनी का काम था सबके कपड़े इकट्ठा करने एक जगह पे, और फिर वो लॉन्ड्रेट में दो जन के साथ जाके वो लॉन्ड्रेट में डाल के वो पाउडर डाल के वहां से। और आप अगर 83 का टीम देखेंगे, कई ओल्ड फुटेज देखिए, हर प्लेयर अलग टी शर्ट पहना है उस मैच में, फाइनल में या कोई भी मैच में। एक इंडिया का लोगो भी नहीं था, सब अपना अपना टी शर्ट पहनते थे। मतलब नॉर्मल क्रिकेट, BCCI क्रिकेट भी ऐसे दौर से गुजरा है, बट तभी किसी को पता भी नहीं था कि हमारा क्रिकेट इतना आगे बढ़ जाएगा इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू, इन टर्म्स ऑफ मनी, क्योंकि इंडिया जीत नहीं रही थी, इंडिया का कोई वैल्यू नहीं था। जिस दिन हम 83 जीत गए, ब्रॉडकास्टर्स आ गए, एडवर्टाइजिंग आ गया, पॉपुलैरिटी ऑफ द गेम आ गई,
तो ये सब चीजें आप अगर एक टेम्पलेट देखेंगे कि क्या चीजें लगती है एक गेम कोई भी लेवल पे सक्सीड होने के लिए, तो आपको पता चलेगा कि कोई भी क्रिकेट जो है एक दौर से चलती है, वहां लोग हिचकिचाते हैं सामने आने के लिए। मगर आप एक 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 स्ट्रक्चर करेंगे ना, एक कि ये तो आप खुद देखेंगे। आज देखिए ओटीटी चैनल्स इतने आए हैं, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स इतने आए हैं, उनको कंटेंट भी चाहिए। आप कुछ भी बोलो, उनको कंटेंट चाहिए दिखाने के लिए। और आज अगर 10 या 20 ब्रांड्स है जो कहते हैं कि इसमें हमारा हमारा एक फायदा है कि हम कुछ नया प्रमोट कर रहे हैं, तो वो ओटीटी प्लेटफॉर्म के थ्रू उनका एडवर्टाइजिंग भी करेंगे। मैं ऐसा नहीं कहता हूं कि ये 2 दिन में होगा, लेकिन आप हर फॉर्मेट देखिए, हर स्पोर्ट देखिए, वो जो राइज होता है उस स्पोर्ट का, पॉपुलैरिटी का, वो एक होता है एस्पिरेशंस, जो बच्चों को एस्पिरेशंस देती है कि मैं आगे कुछ इसके द्वारा कुछ बन सकता हूं लाइफ में। और दूसरी बात है कि आप जितना ग्रो करोगे, इंडियन क्रिकेट ने भी एक ऐसे दिन देखे हैं कि प्लेयर्स को अलाउंस जो मिलता था, आप हंस पड़ेंगे। 90s तक मैंने देखा है कि प्लेयर ताज में रहते थे क्योंकि ताज का कुछ टाइप था, लेकिन फोन करने वो पीसीओ बूथ में जाते थे 9 बजे के बाद, क्योंकि वो कुछ क्वार्टर रेट होता था। तभी मोबाइल के भी दिन नहीं थे। तो बीसीसीआई ने भी, प्लेयर्स ने भी ऐसे दिन देखे। अभी आप बोलेंगे कि एक जमाने में लोग 83 मैंने खुद आंखों से देखा है, मैं प्लेयर्स के साथ रूम में रहता था, तो वो कोई बिजनेसमैन को पकड़ लेते थे शाम को, सर आपके घर पे खाने पे बुलाओ, और वो 20 पाउंड जो मिलते थे उसमें से थोड़े बच जाते थे, नहीं तो उनको बाहर जाके खाना पड़ता था। तो ये सब चीजें हमने सब देखी है अपनी आंखों से। और रणजी ट्रॉफी में भी देखा है कि एक जमाने में 500 रुपए मैच के मिलते थे, अभी 50,000 दिन के मिलते हैं। तो वक्त बदल जाता है। सिर्फ जो कंडक्ट कर रहे हैं गेम, उन्हें जरा स्ट्रक्चर करना चाहिए कि मैं एक बच्चे को क्या रोड मैप दे सकता हूं इस जर्नी से। इस जर्नी से मैं उसकी करियर बना सकता हूं, उसको थोड़ी स्टेबिलिटी दे सकता हूं लाइफ में, या उसको उसको ग्लोबली एक्सेप्टेड एज अ प्लेयर बना सकता हूं। तो फिर सब कुछ, एवरीथिंग फॉल्स इनटू प्लेस, बिलीव मी। I'm really glad that we're having this conversation here, and हम लोग ये इसको काफी solutions, काफी रोड मैप आपने भी अभी डायरेक्ट किया है, and I'm very certain कि ईसीसी बीआई भी अपना कुछ इनिशिएटिव और अपना रोड मैप बना रहा है, but I'm really happy to hear that there are some more inputs coming जो बीसीसीआई ने देखा है from that old times. Since we're talking about initiatives, Shishir, are there any off-field initiatives या कोई ऐसे charitable activities हैं जो वर्ल्ड कप से associated है और आप उन्हें particularly inspiring या impactful मानते हैं? कुछ अगर ऐसी चीजें हैं हमें जरूर बताएं। इस वर्ल्ड कप में मैंने कुछ देखा नहीं है फ्रैंकली, लेकिन आप देखिए कि ऑस्ट्रेलिया बहुत अच्छी तरह से करती है। वो एक कैंसर डे करती है जो ग्लेन मगरा के फाउंडेशन के लिए करते हैं, जो सब कुछ पिंक रहता है उस, और जो भी रेवेन्यू आता है उस दिन का शायद, या उस मैच का, वो कैंसर की तरफ जाता है। ऐसे बहुत इनिशिएटिव्स अक्रॉस द वर्ल्ड होते हैं जो बच्चों के लिए होते हैं। बीसीसीआई शायद इसमें वर्ल्ड कप में आईसीसी की टूर्नामेंट है, तो आईसीसी कुछ तो कर रही होगी, लेकिन मुझे लगता है कि जुड़ जाना एक बात है, बट वो जुड़ के क्या आप पैसा दे सकते हो उस फाउंडेशन को, उस चैरिटी को, उस कॉज को, वो इक्वली इंपॉर्टेंट है। जुड़ जाना, हम सब जुड़ना चाहते हैं, लेकिन अल्टीमेटली यू हैव टू पुट, as they say, the money on the table for people to understand that there is something quantifiable coming to the foundation, to the institution, to the cause, that will help take anything forward. It could be the game of cricket. It could be just spreading the gospel about cancer or autism or whatever it is, or physical handicap. I have a friend of mine who's doing prosthetic legs for kids, and she's done about 600. She's sponsored 600 legs, and they're all some of them are sportsmen. So everybody has something or the other to contribute, and sometimes it's not only money. It is barter. It is something that can help somebody. But at the end of the day, we have to be very careful and mindful that when money comes in, then greed also grows.
And when money comes in, you will realize that a lot of people will be vying for positions, elected positions, buying votes, because there is a lot of money in the corpus that they can play with. So there is a very thin line in creating the journey. And once the journey is achieved, then you will find a lot of people coming into the system so that they can control the money. How you do it is very important, because it's a very dangerous situation that we get into sometimes, because when the money becomes big, you will find a lot more people being interested in the cause. And I'm not saying it is wrong, as long as the intent is genuine and for the cause. जैसे So, साहब थोड़ा सा आपको जो जुड़ाव वाली बात आपने कही, देखिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने तो अपनी तरफ से डायरेक्शन दिया हुआ है बीसीसीआई को कि इस क्रिकेट को भी वो अपने साथ जोड़ें, लेकिन समस्या ये है कि देखा देखी इंडिया में 3-4 और एसोसिएशन हैं, वो आपस में पहले लड़ते हैं। दूसरी चीज सबसे खास बात ये है कि अब ये 5 प्रकार की क्रिकेट है। फिजिकली चैलेंज क्रिकेट है, जो इनका एक हाथ या पैर से मजबूर है, हम उसको स्टैंडिंग बोलते हैं। व्हीलचेयर टीम बोलते हैं, जो दोनों पैरों से मजबूर है। उसके बाद आती है ब्लाइंड क्रिकेट है, फिर डेफ एंड डम्ब क्रिकेट है, अब वुमेन्स क्रिकेट भी, इसी में हमारी दिव्यांग वुमेन्स भी आ गई। तो 5 प्रकार की क्रिकेट को बीसीसीआई के लिए, देखिए बीसीसीआई बहुत ताकतवर चीज है, लेकिन मेरा फिर भी मानना है कि बीसीसीआई के लिए ये टफ जॉब है। इसमें ना पड़ते हुए हमने ये मांग रखी है, जो आज भी मैं फाइल लेके जो जा रहा हूँ, भारत सरकार से मैंने मांग रखी कि इस क्रिकेट के लिए, क्योंकि हम इतने वर्षों से काम कर रहे हैं, हमारे साथ ब्लाइंड भी एसोसिएट्स हैं, क्योंकि इंडिया लेवल पर एकमात्र रजिस्टर्ड बॉडी है, तो डेफ ने भी हमसे एप्लीकेशन लिया हुआ है और इस क्रिकेट को हम लोग बाखूबी चला रहे हैं। तो जैसे ओलंपिक कमेटी और पैरालंपिक कमेटी अलग अलग है, उसी तरह से दिव्यांग क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया को दिव्यांग जन क्रिकेट को संचालन करने का अधिकार दिया जाए, हमारे सर्टिफिकेट की वैल्यू बढ़ाई जाए, ताकि इन बच्चों को कम से कम शुरुआत 4th क्लास की नौकरी से तो हो जाए। देखिए, मैं दिव्यांग भाई मानता हूँ, बट एक मैंने भी ये फेस किया है, जब लोग मेरे पास प्रपोजल लेके आते हैं कि आपने जो सही बोला कि बहुत ऐसे एसोसिएशंस है वो काम कर रहे हैं, और उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है कि विच इज ऑथेंटिक। सब ऑथेंटिक होंगे, अपने अपनी तरह से काम कर रहे होंगे, मैं ये मानता हूँ, और अपनी अपनी वजह से करते होंगे, अपने रीजंस होंगे। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि ये जो एसोसिएशन, जो वेरियस चैलेंज वर्टिकल्स होते हैं, वो सब जुड़ के बीसीसीआई के पास जाके उनकी एक आशीर्वाद लेना चाहिए कि एक ऑथेंटिकेशन होता है। आपको गवर्नमेंट से मिलेगा, अगर मिल गया ऑथेंटिकेशन तो उसके मायने नहीं रखते, क्योंकि गवर्नमेंट से मिलना ठीक है, लेकिन बीसीसीआई का जो ऑथेंटिक, जिस दिन बीसीसीआई ने विमेन्स क्रिकेट को ऑथेंटिकेशन दिया या आशीर्वाद दिया, विमेन्स क्रिकेट कहां से कहां चली गई। तब तक विमेन क्रिकेटर सब रो रहे होते, मैंने देखा है मेरे जमाने में डायना एडल जी वगैरह रो रहे होते थे कि हमको तो कोई मानता ही नहीं है, हम इंडिया के लिए खेले तो भी बोलते हैं इंडिया की मैच नहीं है। तो आप समझ लो कि अगर आप सब जुड़ के, यार उसमें वेरियस वर्टिकल्स है, एक तो हैंडीकैप्ड है, एक तो व्हील चेयर है, एक तो ब्लाइंड है, ये सब बोले कि हमको आप आशीर्वाद दीजिए, वी वॉन्ट टू कम अंडर योर umbrella, then it becomes more authentic. I'm giving you some constructive advice, because what will happen is 10 other institutions or associations will erupt from nowhere, and what will happen is create confusion in the mind of the sponsors, the broadcasters, the people who watch, that what is this. So it is important for all of you all to collectively come together, सब लोग साथ में जुड़ के, और हर एक का अलग अलग यूएसपी है, ऐसा नहीं कि सब वही कर रहे हैं। सब जाके बीसीसीआई को एक प्रपोजल दे के देखिए, हम हमारे जो हैंडीकैप है वेरियस टाइप्स के हैं, तो आप हमें जरा अंडर आपकी छत्र छाया में बोलते हैं ना, उसके नीचे ले लीजिए, क्योंकि ये हमारे बच्चों के लिए फायदेमंद होगा, और एक उनको एक सपना अचीव, जो जो ड्रीम है वो अचीव करने के लिए एक मौका मिलेगा। सर, पर मेरी जानकारी के हिसाब से आई थिंक बीसीसीआई ने डीसीसीआई को एक्नॉलेज किया है। जय शाह जी ऑलरेडी उनको एक्नॉलेज करते हैं, उनको काफ़ी एडवोकेट भी करते हैं और अपॉर्चुनिटीज़ भी देते हैं। ये जितना मैं थोड़ा गेम के बारे में जान पाई हूँ, ये मेरे को इतना समझ में आया है। बट हाँ, मेरे को ये भी समझ आया कि सेम डिफरेंट बॉडीज़ हैं
और अभी उनको यूनाइट होने में भी अंदर कुछ अंडर करंट इश्यूज चल रहे हैं. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जैसे शिशिर जी बोल रहे हैं कि हम एक बड़ी बॉडी के पास जाने से पहले एक फ्रेमवर्क करें, तब जाकर के सर्टिफिकेट्स को इम्पैक्ट मिलेगा. तो मैं मेरी एक फर्स्ट स्टेप है कि आप ऐसे लोगों से को इन्वॉल्व करिए जो क्रिकेट में नाम बना चुके हैं. करसन गावरी इज अ ग्रेट नेम, अ वेरी गुड ह्यूमन बीइंग. वैसे आप अगर चार पांच बड़े क्रिकेटर, आज तो एक ऐसा क्या बोलते हैं कि दिन है कि जो हमारे प्यारे विशन बेदी जी है, वो उनका निधन हो गया है. उनके पास आप ये प्रपोजल लेके जाते तो वो इमीडिएटली इसे एम्ब्रेस करते. वो ऐसे आदमी थे, ऐसे इंसान थे जो कुछ काम के लिए कभी भी और या कुछ सपोर्ट के लिए कभी भी ना करते. ब्लैंक पेपर पे साइन करके ऐसे इंसान थे. और जी हाँ. it's been a great loss for Indian cricket and world cricket that we have lost such an upright human being in Bisham Paji. But it comes to mind only because you need to engage with a lot of these cricketers who understand the pulse of what a handicapped or a cricketer who's physically challenged but wants to achieve something through that challenge also. And I think a lot of cricketers will be happy to come on board to support you all, because when you prepare a very strong base of known cricketers who are supporting you, it lends a lot of authenticity to what you're doing. It lends a lot of credibility. You see, if Shishir Hattangadi goes somewhere and says, I'm setting up something, they'll say, Yaar, ghar jao. But if I take a Gavaskar with me, or I take Sachin with me, saying that we want to do this, for cricketing reasons, at least people will say they are doing something constructive because some names have attached themselves with it. And that is important in terms of building that halo बोलते हैं ना, जो halo बनाने के लिए ये बहुत important है, because उसके द्वारा आप लोगों को attract कर सकेंगे. बिल्कुल आपके बताए हुए पथ पे चलने का प्रयास रहेगा और काम उसी तौर पर चल रहा है. थोड़ा सा हमारा एक और मजबूरी है कि हम, जैसे मैं खुद आगरा से हूँ, हमारे अध्यक्ष रांची से हैं, तो हमारे जो छोटे शहर में और बॉम्बे में बहुत फर्क है. या तो हम लोगों को बॉम्बे रहना पड़ेगा या दिल्ली नहीं रहना. भैया, ऐसा कुछ बात नहीं. अभी इंडिया तो इस फोन से कनेक्टेड है. आज अगर रांची में आपके अध्यक्ष है, उनको बोलिए धोनी माही से बात करे कि ये कॉज है. अगर महेंद्र सिंह धोनी जैसा व्यक्ति जिसका स्टेचर है, क्रेडिबिलिटी है, ऑरा है, वो अगर इसमें इसको आशीर्वाद दे दे तो आपको कोई नहीं चाहिए, आपको बीसीसीआई भी नहीं चाहिए. मैं इतना वादा कर सकता हूँ. क्विकली आई थिंक वर्ल्ड कप की बात चल रही है तो हम लोग अभी मिड पे पहुंच गए. ऑफ कोर्स मेरे पास आप लोगों के इनिशियल थॉट्स हैं कि फर्स्ट 5 कौन होंगे, बट मैं अब जानना चाहूंगी कि आपके हिसाब से शिशिर टॉप 5 कौन होंगे. 5 का तो पता नहीं, मैं 4 का बोल सकता हूँ क्योंकि 4 के मायने रखते हैं. पांचवे को वो क्या बोलते हैं कि ही जस्ट लूजेस आउट ऑन द रेस. सो आई वुड से इंडिया डेफिनेटली. I would say South Africa definitely. The way they're going, it can take a dip. This game is so fickle, and everything can turn around very fast. But I would say second would be South Africa for sure. Third, definitely New Zealand for the way they're playing. Fourth, given a choice between all those who are sort of struggling to find form, I'd still go with Australia. For the simple reason that I don't see Pakistan coming out of this rut. They're a more talented team. They haven't played well and they're facing a lot of pressure from their own media back home. And I think it's affecting their body language and the way, unless there's a turnaround and they can come. But what I'd like to see is these 4 teams qualify because they're probably playing better than the others. But who knows? Afghanistan. They can just, spring a surprise because they've had 2 good wins and 2 good teams to beat. So you never know what can happen. But I'd say that, the dark horse for the 4th position can be Afghanistan. Having said that, in a normal world, these 4 are who I look at as qualifying. But then, cricket is full of pundits who go by data. They don't know that when you get up on the wrong side of your bed on a certain day, you could just do everything right and still lose a game.
एब्सोल्युटली। हरुण जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आपके टॉप 4 पिक्स क्या हैं इस वर्ल्ड कप में? देखिए, जो बात शिशिर साहब ने बोली कि पहली चार टीमें, तो जाहिर सी बात है कि वही चार टीमें परफेक्ट नजर आ रही हैं सेमीफाइनल के लिए। और जो आप टॉप 5 बोल रहे हैं, तो अब ये चार के अलावा बाकी जो टीमें हैं, 6 टीमों में बड़ा जबरदस्त कंपटीशन है कि वो उनमें से 5 पर कौन आ सकता है। तो मैं भी यहाँ पर अपनी राय में अपना मत देना चाहूंगा कि अफगानिस्तान को मैं चूज कर रहा हूँ टॉप 5 के लिए। पाकिस्तान की तो चलिए अभी जो कंडीशन है ना, वो तो काफी पिछड़ने वाले हैं अभी आगे, और भी उनके टफ मैचेस हैं। और टीम यंग ब्लड है, अच्छा है, लेकिन जो प्रेशर है ना, वो प्रेशर को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे मेरे शब्दों में। वो जो प्रेशर है वो उनको लगातार दबाव में डाल रहा है। पुराने वक्त में जो टीम हुआ करती थी, वकार यूनुस, शुएब अख्तर और वसीम अकरम साहब के वक्त में, वो लोग कितना भी प्रेशर होता था, अपने गेम से पूरा माहौल बदलते थे। अभी ये टीम जो है, देखिए शाहीन बहुत अच्छा उनके पास एक बॉलर है, और और भी जो बॉलर है, रऊफ है, बहुत अच्छा मूवमेंट है उनके पास, बैटर बहुत अच्छे हैं। लेकिन जो कॉम्बिनेशन है वो प्रेशर में उनका पूरा कॉम्बिनेशन उनका बिखर रहा है। तो 5 पे मैं भी यहाँ पर अफगानिस्तान को कहना चाहूंगा। चलो जी। ठीक है. We agree to agree. Thank you. That's good. लवली। हरुण जी, आई थिंक ये वन ऑफ द लास्ट क्वेश्चंस होगा कि व्हाट आर योर थॉट्स ऑन द इंडिया इंग्लैंड मैच जो भी होने वाला है 29th को? जी, देखिए, हमारी तो पूरा फोकस रहेगा बॉलिंग अटैक पे, क्योंकि हमारे पास बैटर बहुत अच्छे हैं। लेकिन अगर हम लोग इस ओवर कॉन्फिडेंस में चलेंगे कि हमारे पास बैटर अच्छे, हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हमको बॉलिंग अटैक पे ज्यादा ध्यान देना होगा। क्योंकि जिस प्रकार से शमी ने वापसी करी है, बहुत शानदार, 5 विकेट, अगर आते ही उन्होंने 5 विकेट लिए हैं, और सिराज का और साथ में बुमराह का तो खैर कहना ही क्या है। स्पिनर्स का भी जो योगदान है, कुलदीप भी अपने पूरे असर से चल रहे हैं। जडेजा साहब का जो यूज हुआ है पिछले मैच में, वो बहुत शानदार रहा। उनका यूज होना चाहिए, कई मैचों में उनका यूज प्रॉपर नहीं हो पा रहा था, लेकिन इस जो पिछले मैच में यूज हुआ, उन्होंने बल्लेबाजी में भी अपने को दिखाया और गेंदबाजी में भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया, अच्छा लगा। Shishir, तो your thoughts on the upcoming match? A very important game for England more than India. For the simple reason they need to restore some pride and restore some quality in their performances. They have struggled, and it's no secret the way they've played. But they are a much better the team than they've shown that they are. And they when the World Cup started, they were one of the favorites. But I think the conditions and the surfaces haven't helped them, and also the pressure of big runs against them. Uh, the key players haven't fired like inconsistently for them to achieve those totals. So, and they will have to watch out for Kuldeep Yadav because England has always been a little allergic to quality spin, and Kuldeep is a rare commodity. He's a left arm leg spinner, which means he can bowl the Chinaman, he can bowl the googly, and he's somebody that not many teams have picked very well, and that will be the key because his 10 overs will decide how the big hitters like Stokes, Bairstow, and Butler will be able to pile up runs. Because if they do so, they will have to do so in such a way that they account for the Indian batting that looks pretty dangerous at this point in time. So, where your pass score would be 300, they would have to look at 350, 360 to be able to put pressure on India and then hope that you pick up early wickets. Because ऐसे टोटल में अगर आप अर्ली विकेट्स नहीं लेते फर्स्ट पावर प्ले में तो गेम सीम्स टू बी स्लिपिंग. जब भी आप 3-4 विकेट ले लेते हो पावर प्ले में तो प्रेशर बढ़ते रहता है और आपकी टीम इतनी सॉलिड है. यानी लोअर ऑर्डर बैट्समैन को अभी तक टेस्ट नहीं किया गया है बिकॉज टॉप ऑर्डर बैट्समैन परफॉर्म कर रहे हैं. तो अगर 4-5 विकेट 4 विकेट चले गए इंडिया के तो लोअर ऑर्डर को एक्चुअली एक्सपीरियंस ही नहीं है प्रेशर हैंडल. आई मीन दे हैवंट प्लेड anything in the middle. So it's a new situation for them. And you have to give, if I was England, I would try and create that new situation for the Indian team because they are in a zone where they're performing, ticking all the boxes, whether it's batting, bowling, fielding. So you have to create a new situation to put pressure. Otherwise, the game is over.
बिल्कुल सहमत। Absolutely. Bilkul, I think it's a good thought that you've shared with us, and only an expert like you can share something like that No, with I'll just make a, us. simple analogy that, if I am an opening batsman all my life, I would like to go into the theater when, the statutory warning of do not smoke, do not drink comes. So I am in tune with what is happening. But if I'm an opening batsman and I go in, you send me just before the interval, it's a new space for me. For me to get adjusted to that, I will have to be in that situation many a time. And I think what has happened is Indian cricket. I mean, to our benefit, the Indian team has never faced that situation where there is pressure on the lower order batsman. In this whole tournament, the top five have delivered, so the lower order actually don't know. I don't think they've gone out into the middle in that situation. So it will be interesting to see, and that is why I'd like to see the Indian team tested in the league stages, where the lower order batsmen also put their hands up and perform. So you know that these guys are not in deep slumber, and it can happen in a game. It can happen when you're doing so well that the low order batsmen do get into a slumber, but they're not faced with a match situation as they would in a tight game. So just let's hope that situation doesn't come. But if it comes, then we should be prepared for it. Yeah, and I think considering where India is placed right now, England can or India can afford to kind of like put into a testing situation, because I think the table graph for India is currently very high. So yes, let's see. I think the match is coming up. Everybody's looking forward to the match. And I'd like to conclude this conversation by genuinely to ask, expressing my gratitude for coming and sharing your inputs for both the match, the World Cup, and giving a little guidance to the different label community. And Harun ji, दिली धन्यवाद, आप आए, आपने अपना समय दिया। आपके स्पोर्ट के बारे में हम और जानना चाहेंगे। ऑफ कोर्स अभी वर्ल्ड कप चल रहा है, उम्मीद करेंगे कि हम फिर से एक बार बातचीत कर सकें ताकि हम आपके गेम के बारे में जान सकें। And all the very best. And here's looking forward to more. And this is Radhika Khetarpal signing off, and you're watching Radiant Sports Pick World Cup Edition. Thank you. Thank you.